लेट वर्सेस वैर वर्सेस कॉन्स्ट, तो इसे अंडरस्टैंड करते हैं. सो वैर इज बेसिकली टू डिक्लेयर अ वेरिएबल इन अ जावास्क्रिप्ट, जैसे हम वैर लिख के वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं. और वैर का जो स्कोप है डेट इज आइदर ऑन अ फंक्शन लेवल या ग्लोबल स्कोप है. इट डिपेंड्स कि उसे आपने कहाँ पर डिक्लेयर किया है. लेकिन लेट और कॉन्स्ट का जो स्कोप हम यूज़ करते हैं डेट इज ऑन द ब्लॉक लेवल स्कोप. सो दैट इज़ अ मेजर डिफरेंस बिटवीन कि अगर आप वैर यूज़ कर रहे हो इट इज़ ऑलवेज ऑन अ फंक्शन लेवल स्कोप or either it is global scope, but when we talk about the var or const it is always a block level scope. इसे understand करते हैं example से. So I define a function here, let's say I define a function display, and in this function I assign two variables x and y, और then here I am giving a condition कि अगर x और y बराबर होते so I just make it sum in a z variable, right? सो व्हेन आई डिफाइन वैर z, बिकॉज आई टोल्ड यू कि जब भी आप वैर डिफाइन करते हो उसका स्कोप ब्लॉक लेवल नहीं होता, तो उसका स्कोप इफ़ के ब्लॉक में नहीं होगा. इट इज़ ऑलवेज बिकॉज आपने उसे फंक्शन के अंदर डिफाइन किया तो उसका स्कोप असल में यहाँ होगा. सो इट मीन्स व्हेन यू डिफाइन वैर z हेयर बिहाइंड द सीन, जावास्क्रिप्ट डज दिस थिंग, इट एक्चुअली डिक्लेयर अ वेरिएबल ऑन अ फंक्शन लेवल स्कोप. तो उसे वो फंक्शन लेवल स्कोप पे डिक्लेयर कर देता है. Once it is get declared on this var z, so we can check this out by using console.log. हम console.log लिखते हैं और यहाँ जाके इसको z को print करते हैं because it is get declared but it is not assigned, so it is coming as undefined. So when we print this thing, it is coming as undefined. So it means it is declared but it is not initialized. और आफ्टर दिस लाइन, जब वो ये लाइन चल जाएगी x इक्वल टू y होगा, सो इट हैज़ द समीशन ऑफ दिस वैल्यू, एंड व्हेन द वैल्यूज गेट सबमिट, तो यहाँ जाके इसका सम आ जाएगा, एंड देन सम वैल्यू इज कमिंग एज z कॉमा z. सो नाउ यू हैव द रिजल्ट, दैट इज द सम रिजल्ट, राइट? तो अब इसे टेस्ट करते हैं. सो फ्रॉम हेयर इफ आई पास 10 कॉमा 10, सो बोथ ऑफ द वैल्यू आर सेम. But if you see the result, it is coming z is coming undefined. Now because where z पे जाके वो value assign हुई, so you have the assigned value. So it means your where is always get hosted. It is get hosted. That's why we use a word called variable hosting. And variable hosting is happen because of the where, right? So it would be guessed variable hosting. And because it has a variable hosting, so your variable is get hosted here, and that's why it is coming undefined. So that is how the var will work. Now how we will see how the let will work. वो कैसे काम करने वाला है. So for a let, let's understand the same example with the let keyword. So अगर मैं यहाँ जाकर इधर let लिख देता हूँ, तो let का जो scope है वो if से ही शुरू होता है. So when I define if here, then it is comes in the picture. So it never be, I mean we cannot say it never be host. It is actually host. ये host होता है, लेकिन कहता है जब मैं host होऊंगा, मैं तभी होऊंगा जब मैं declare हो रहा हूँगा. I mean जब मैं assign हो रहा हूँगा तभी होऊंगा. Because if it is get hosted, it does not have any value. And if it does not have any value, because उसमें कोई undefined assign नहीं होगा, so it does not have undefined value, so it will give a reference error. So if I try this thing, it will not giving undefined, it will giving a reference error here. Because it is try to host it, वो ऊपर जाके इसे host करता है, but it is not assigned, the value is never be assigned. So because the value is not assigned, so that's why it is coming a reference error. So if we try this thing with a let keyword and I write display and 10 comma 10, you will see it is giving a reference error. So it is saying z is not defined because it has the scope, that is the block level scope. So this is we have learned. So I just commented out this thing. Even here I am not able to use it. So if I try this thing, because it is again out of scope of this, so if I run this again, it is the same error is coming because it is limited to the if block. तो अगर हम यहाँ जाकर टाइप करते हैं console.log and I am saying z is comma z, and I just commented out this thing, and if we run this thing, now the output will become done with let and where. And now it's time to move to the const. Const के नाम से पता चल रहा है कि it is for defining a constant. Let और constant दोनों फीचर ECMA 6 से इंट्रोड्यूस हुए. So const को डिफाइन करने के लिए, to define a constant, you need to specify const, and let's say I specify a constant company name. और ये कन्वेंशन है कि जब भी आप constant बनाओ उसे कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट करो. It's just a standard.
So I just specify constant name as this. So it means when you define a constant, so it means its value is assigned only once and it never be reinitialized. जैसे let भी आपके पास ब्लॉक लेवल स्कोप में होता है, ऐसे ही constant भी ब्लॉक लेवल स्कोप पे होता है. So if I assign it, if I try to assign with something else, it will generate an error. So now we will check the const with an array. तो अभी तक हमने एक सिंपल वेरिएबल के साथ देखा है. So let's say if I define an array of some value like this 1 2 3 4, तो behind the scene वो क्या करता है, वो जाकर heap memory के inside. So if we just go to this diagram, तो यहाँ पर हमारे पास हीप मेमोरी है जहाँ पर ऑब्जेक्ट्स रहते हैं और एरे इटसेल्फ ऑब्जेक्ट ही क्रिएट करता है. सो बिहाइंड द सीन यू हैव 1 2 3 4 दीज थिंग्स आर गेट क्रिएटेड और इन सब का एक एड्रेस होगा. लेट्स अज्यूम 77 इज अ रेफरेंस एंड दैट इज गेट जनरेटेड बाय दिस राइट हैंड साइड एंड इट इज असाइन टू दिस लेफ्ट हैंड साइड. तो इसके पास एड्रेस आ गया और अगर हम देखें भी तो हमें पता चलेगा कि जो ARR है आपके पास वो एक्चुअली में एक ऑब्जेक्ट है. It's an object, right? And it is an object of which type? It is an object of array type, right? तो अब अगर मेरे पास ये array है तो इस array के पास एक्चुअली में एड्रेस असाइन हुआ है. सो इट मीन्स इन दिस ARR आई असाइन अ 77. सो मैं इस एड्रेस को रीअसाइन नहीं कर सकता, इसे चेंज नहीं कर सकता, बट आई कैन चेंज द वैल्यू. सो इफ आई ट्राई टू चेंज द वैल्यू ऑफ दिस, so this is possible. So if I let's say saying I am changing this value to 10,000, so this is possible and if I print it, देखो आपके पास वैल्यू चेंज हो गई है. लेकिन अगर आप इसमें कोई दूसरा एरे असाइन करने की कोशिश करते हो, so when you define this thing, so it means it is going to create a new memory. तो एक नई मेमोरी बनेगी और उस नई मेमोरी का ऑब्वियस है एक नया एड्रेस होगा and this address cannot be reassigned because already it has pointing to this memory and it is a constant. तो इसका मतलब इसके बाद जो वैल्यू आ चुकी है वो असाइन नहीं हो सकती. इट्स सेम लाइक दिस. सो यहाँ पर फ़र्क सिर्फ यही है कि यहाँ पर हम वैल्यू असाइन कर रहे थे, इसमें हम एड्रेस असाइन करते हैं फर्स्ट टाइम, बट इंटरनली इन वैल्यूज़ को हम मॉडिफाई कर सकते हैं बट वी कैन नॉट रीअसाइन द एड्रेस. सो दिस इज हाउ इट विल वर्क विद एन एरे, द कॉन्स्टेंट थिंग. तो आगे से चला कर देखते हैं. सो इट इज गिविंग एरर. It's perfectly fine. Now the point is, if we try the same thing with an object, so if I define something called const x and I define it, this is an object, and let's say I define it as an Amit and I specify the job of Amit is training, or I either say I'm saying it is a trainer, right? So the name is a key and job is again a key and Amit and the trainer is the value of this object. और इस केस में भी सेम ऐसा हुआ है मेरे पास कि यहाँ पर मेरे पास एक मेमोरी क्रिएट हुई है हीप के अंदर एंड इट हैज़ एन ऑब्जेक्ट और उसके अंदर भी नेम असाइन हुआ है अमित एंड इट हैज़ अ जॉब ऑफ ट्रेनर दैट इज अ गेट असाइन और इसका भी एक एड्रेस होगा. सो लेट्स अज्यूम 88 इज एन एड्रेस. सो x इज एक्चुअली पॉइंटिंग टू दिस एड्रेस एंड इट्स अ कॉन्स्टेंट. तो यहाँ पर एक कांस्टेंट है, इसका मतलब इसके पास जो एड्रेस असाइन हुआ है आई कैन नॉट ट्राई टू रीअसाइन इट. सो इफ़ आई इंटरनली वांट टू चेंज द वैल्यू ऑफ इट्स जो की है मेरे पास उसकी वैल्यू मेरे को चेंज करनी है. सो दिस इज पॉसिबल. सो इफ आई एम सेइंग जॉब इक्वल्स टू फुल स्टैक ट्रेनर, सो दिस इज गेट चेंज. इफ आई ट्राई टू शो दिस एक्स में देखो मेरे पास फुल स्टैक ट्रेनर वैल्यू चेंज हो गई है, बट इफ आई ट्राई टू री इनिशलाइज इट विल जनरेट एन एरर. सो यू विल सी द एरर. सो इट इज सेम बिहेवियर लाइक एरे में जैसा बिहेव हो रहा था वैसे यहाँ पर बिहेव हो रहा है. सो दिस इज द डिफरेंस कि कॉन्स्ट कैसे काम करता है. सो इन दिस इंटरव्यू क्वेश्चन वी अंडरस्टैंड लेट वर्सेस वैर वर्सेस कॉन्स्ट.